السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک نیا چورن بیچا جا رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی بیچا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کیسے پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گی، یہ نیا سودا جو اب بیچا جائے گا، یہ ماضی میں کب کب بیچا گیا، کس طریقے سے بیچا گیا، یہ منجن ہے کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ آصف کا استعفیٰ، کیا واقعی وہ آنے جا رہا ہے؟ اس پر جو اے ڈی سی آر یعنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے سیالکوٹ کا، کیا اس کا استعفیٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ خواجہ صاحب استعفیٰ دے دیں؟ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے جیل سے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے 5 اگست کے احتجاج کے بعد۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ظلم اور جبر کے بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے۔ عوام نے جیسے تمام تر فسطائیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنے آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا، وہ قابل تحسین تھا۔ میں بالخصوص پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کے سب بتوں کو توڑ دیا۔ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جس تعداد میں 5 اگست کو ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے، وہ شاباش کے مستحق ہے۔ لیڈرشپ پر پریشر کے باوجود بھرپور ملک گیر احتجاج عوامی شعور اور بیداری کا شاندار مظہر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشل لا دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لا میں عاصم منیر کر رہا ہے۔ موجودہ دور کا موازنہ نہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے، جب عوامی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور قوم عوام پر فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو دو لخت کر دیا گیا۔ آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ سقوط ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا، میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا۔ اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب یہ قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی۔ ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے۔ اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی نہیں ملے گی۔ 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسطائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے۔ ہمیں اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی، اور آزادی لینا تبھی ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے۔ میں خود اپنی قوم کی خاطر جیل میں بدترین حالات کاٹ رہا ہوں۔ یہاں موجود قیدی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجھے توڑنے کی ناکام کوشش میں میری اہلیہ بشرا بیگم کو بھی بدترین حالات میں رکھا جا رہا ہے، مگر میں پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر قربانی دینا ہوگی۔ میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، خان کبھی ملٹری کے حوالے سے بات نہیں کرتے، وہ فوج کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ وہ موجودہ جنرل کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ فوج کو اور موجودہ بادشاہ کو الگ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ جو میں نے سمجھا ہے خان کے پچھلے چند ٹویٹس میں، مجھے یہ سمجھ آیا کہ خان اب جنرل صاحب اور فوج کو الگ الگ دو اینٹیٹیز دیکھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ادارے کو تباہ کر دیا موجودہ بادشاہ نے اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی بات گنڈا پور نے بھی کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات کو ٹویسٹ دے دیا۔ پھر خان کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ بہادر قوموں کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، صرف تمام پاکستانی جیل جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ میرا تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کریں اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیادت فراہم کریں۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ایسا ہی آپریشن اے این پی کے دور میں کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکام پالیسیوں کو اپنا کر اے این پی
खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशत गर्दी, नफ़रत और तबाही मज़ीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफ़गानिस्तान से रद्द अमल की उम्मीद में अफ़गान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात ख़राब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाज़े कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये होगा कि हम उनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। अच्छा, ये बात किसी ने सोची नहीं थी जो अभी इमरान खान ने कही है कि जिन लोगों ने वफादारी की, जैसे ज़रताज गुल वज़ीर हैं, जैसे हामिद रज़ा हैं, या दीगर लोग हैं जो PTI के शिबली फराज, उमर अयूब वगैरह बड़े सियासी नाम हैं, इन्होंने बहुत मुश्किल में इमरान खान का साथ दिया है। अगर इनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनके पेट में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान ने की है। फिर इमरान खान कहते हैं कि आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज़ और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िका तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइज़र्स खुसूसन तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान ने जेल में बातचीत की है और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी ट्वीट की है। अब आ जाएँ दूसरी खबरों पर जो फैलाई जा रही हैं। जाहिद गशगोरी की खबर देख लें मोहम्मद मालिक की, और मोहम्मद मालिक कहते हैं कि 2 लिस्टें जो हैं वो बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की है उससे अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रही है। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और दूसरा कोई अहम नहीं होता। बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तो आप नाम नहीं ले सकते। तो उन्होंने बताया कि 2000 अरब से ज़ायद पिछले 3 सालों में करप्शन हुई है। ये 3 सालों में जब से मौजूदा आर्मी चीफ हैं और जब से रजीम चेंज किया जनरल बाजवा ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से ज़ायद की करप्शन हुई है। उनको ये बताया गया फ़ंड में करप्शन, और इदारे के लोग शामिल हैं जो फंड्स तरक्याती दिए जाते हैं ना, उनमें भी करप्शन हो रही है। इदारे के लोग भी बीच में शामिल हैं, इदारा भी इन्वॉल्व है, और इदारे से क्या मुराद लिया जाता है वो आप सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि अब एक लिस्ट बन रही है जिसमें पहले 500 केसेस पकड़े जाएंगे, उनमें मेन कोई सियासतदान शामिल किए हैं, ब्यूरोक्रेट्स किए हैं इधर उधर से, और रिकवरी की जाएगी। और ये टारगेट रखा गया है कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। दूसरी, जाहिद गशगोरी ने खबर दी और उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिला है जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स और जायदादें हैं। इन असासों की कुल मालियत 8,000 अरब है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफसरान में अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं जिन्होंने गुज़श्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दी है, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि 2570 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज़्यादातर ग्रेड 16 और उससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शरीयत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनैलिटी है, या उनकी शरीके हयात या बच्चे वहाँ की शोहरत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमात दायर करने का इरादा रखती है। नाज़रीन इकराम, ये हो गया मामला। ये कहानी मैंने आपको सुना दी। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन पहली दफ़ा नहीं बेचा जा रहा, इससे पहले ज़िया के दौर में बेचा गया, मुशर्रफ के दौर में, राहील शरीफ के दौर में और जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया। अब यही मंजन मौजूदा बादशाह के दौर में बेचा जा रहा है। अब मंजन है क्या कि इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखें,
पाकिस्तान के सारे फैसले तो इस्टेब्लिशमेंट खुद करती है। हर इदारे पर काबिज कौन है? इस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा कौन है? इस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन कंट्रोल करता है? इस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आई है, ये सोचने की बात है। एक बात जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द अमल नहीं है, एक टके का भी। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के इन्हें इक्तदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में, एक दफा बाजवा और मौजूदा बादशाह के दौर में। तो इसको आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करप्शन को एप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहें, आप करप्शन करते रहें, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को बंदा ही वो सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे ये बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जज्बा भरा होता है, वो इनके काम के नहीं है। बहरहाल ये करप्शन की कहानी क्यों सुनाई जा रही है? ये महज इसलिए है क्योंकि आगे नवंबर आ रहा है और नवंबर में एक एक्सटेंशन चाहिए। फिर वडे साहब को सदर पाकिस्तान बनने का भी शौक चढ़ा हुआ है। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, इसलिए आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी कहानी की तफसील खुलकर सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।